संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को यानी कि आज शुरू हो गया है और विवादों और बहसों का केंद्र भी बन गया है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जो दिन भर की चर्चा का विषय बनी रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। दरअसल विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कुछ अन्य सदस्यों ने अदानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर एक नोटिस दिया था। लेकिन सभापति धनखड़ ने इन सभी नोटिसों को अस्वीकार कर दिया और खड़गे को अपनी बात रखने का मौका दिया। और साथ ही सत्र की शुरुआत में ही सभापति धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान के 75 साल पूरे हो गए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप इसकी मर्यादा रखेंगे। बस धनखड़ के इस बयान पर खड़गे भड़क गए और उन्होंने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान 54 साल का है, ऐसे में आप मुझे मत सिखाइए कि कैसे रहना है। इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद सभापति धनखड़ ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप इस तरह से बोल रहे हैं, मुझे इससे दुख पहुंचा है। आप इस बहस का ये वीडियो खुद ही अपने आंखों से देख लीजिए। The motion is adopted. Honorable members, I have received 13 notices under Rule 267. The notices from Dr. John Britas, Shri Mallikarjun Kharge, Shri Neeraj Dangi, Shri Pramod Tiwari, Shri Akhilesh Prasad Singh, Shri Sanjay Singh, Dr. Syed Nasir Hussain seek discussion on the alleged corruption, bribery and financial irregularities of the Adani Group. Shri Santosh Kumar P, Shri Raghav Chadha have sought discussion on the ongoing violence and killings in Manipur. Dr. Syed Nasir Hussain, Shri Javed Ali Khan, Shri Harish Biran have sought discussion on violent clashes during survey in Sambhal, Uttar Pradesh. Further, Dr. V. Sivadasan has sought discussion on the need for special assistance to address the plight of people of Wayanad. Honorable members would recall that in this regard, I had given my detailed ruling on Rule 267 on 8th December 2022 and 19th December 2022. The same was reiterated by me on a number of occasions. These notices do not conform to the directives imparted by the chair in this behalf. I have not been able to persuade myself to agree to the same. I would urge the honorable members, as I indicated in my opening observations, we are in a very particular period, 75th year of adoption of the Indian Constitution. I would urge the honorable members to keep that in mind, and we exemplify highest standard not only for 1.4 billion people but for the world also, that we will work in decorum with devotion and commitment to fructify aspirations of our people. Matters raised with permission. One second. Excellent. Honorable members, please bear with me. There was not even a second's gap. LOP could hardly rise. We have someone sitting there. LOP को बोलने दो.
Let us not dilute the status of leader of the opposition. खड़गे जी, बोलिए प्लीज 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 खड़गे जी. Sir, As a very senior parliamentarian and a leader, you are aware that my ruling on this issue has been given. I would seek your earnest cooperation, particularly in the background that matters to you more than anyone else, that we are in the 75th year of adoption of our sir, 75th year है, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 years है, तो Sir, मुझे कोई sir, सिखाने की कहने की बात नहीं. सही. एक बार आपको अनुरोध करूं. मैं एक आपसे second. No. Please take your seat. No. In all humility, from the chair, all I said, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. Okay, Still sir. you are taking exception. Thank you very much. Thank you. No, sir. Thank you. I'm Sir. hurt. This you. is hardly an approach. I have commended his contribution. Thank you. I have praised it. And the same. सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट What मसला I have है. to say, sir. Not on 267. 267. No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. I ये said so. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. no, entire Nothing country. is going on record. And बस फिर क्या था, ये बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित ही करना पड़ा, जिसके बाद सदन अब 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगा. लेकिन उस दिन भी कोई कार्यवाही होगी या फिर नहीं, या फिर उस दिन भी ऐसे ही स्थगित हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी. वहीं सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित भी किया. उन्होंने इस सत्र को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये सत्र जो है संविधान के 75वें साल की शुरुआत का प्रतीक माना है. पूरा देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का आखिरी चरण चल रहा है और देश 2025 की तैयारी कर रहा है. ये सत्र कई मायनों में खास है. मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सांसद गरिमामयी तरीके से चर्चा करेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे. हालांकि पीएम मोदी के शीत माहौल की उम्मीद के बावजूद भी पहले ही दिन सदन में गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला, वो भी स्पीकर सभापति के बीच और खड़गे के बीच. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ को सत्र की सबसे अहम बात भी बताया. उन्होंने कहा कि संविधान ने हमारे देश को न केवल एक मजबूत लोकतंत्र दिया है, बल्कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने का रास्ता भी दिखाया है. मंगलवार को संसद में संविधान की वर्षगांठ को विशेष रूप से मनाया जाएगा और इस दौरान सभी सांसद हमारे संविधान के महत्व और इसकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे. पहले ही दिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस ने इस बात के संकेत जरूर दे दिए हैं कि सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस होने वाली है और ये इसकी सिर्फ छोटी सी शुरुआत कह लें या फिर एक झलक कह लें, ट्रेलर कह लें, कुछ भी कह सकते हैं. शीतकालीन सत्र का समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अगले आम चुनाव से पहले का अंतिम सत्र है. ऐसे में विपक्ष उन सभी मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा जो सरकार को घेर सकता है. विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा और आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर सरकार पर हमला जरूर बोलेगा. वहीं सरकार विकास कार्यों, आर्थिक उपलब्धियों और अपने फैसलों के पक्ष में तर्क पेश करेगी. शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन के घटनाक्रम से साफ ये तो हो गया है कि यह सत्र सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव का गवाह बनेगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर गरिमा में चर्चा हो पाती है या वो भी स्थगित हो जाएगी. राजनीतिक मतभेद इसे भी प्रभावित जरूर करेंगे. संविधान का यह शीतकालीन सत्र राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है. संविधान की 75वीं वर्षगांठ इसका प्रमुख
प्रमुख केंद्र माना जा रहा है। लेकिन हंगामे और बहस के बीच ये देखना जरूरी होगा कि क्या संसद सकारात्मक माहौल में देश की भलाई के लिए कुछ काम कर पाएगी या फिर ऐसे ही गर्मा गर्मी में निकल जाएगी। ये तो अब सदन शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक आपका इस पर क्या रुख है? आपको क्या लगता है कि क्या ये जो सत्र है वो गरिमा रूप से चल पाएगा, गरिमामय रूप में रह पाएगा? क्या इसमें कुछ विकास कार्यों की बातें हो पाएंगी या फिर पक्ष और विपक्ष केवल लड़ता भिड़ता ही रह जाएगा, जैसे कि आज पहले दिन हमें देखने को मिला कि सभापति और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच ही जो है बहस देखने को मिल गई। अब आपका इस सब पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल खबर पुस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।